So welcome to to the students of class 10th JK Bose. Welcome to the virtual classroom of Jaffrey Academy of Modern Education. So here I am with the part 2, second lecture of Abile, part 2 of Abile. As earlier we had discussed some passages of this short story. और आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा few passages. तो होता क्या है कि जो सा तो फिर लाइंस हम पढ़ेंगे और उसके बाद थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे. सो यस, श्रीनगर aside, our Abhi has not even ventured beyond a distance of 10 miles from our village. 2 years ago, after a gap of 8 years, she had made it to Leh town for the annual Dosmachi festival, held every winter to purge the town of evil. She saw masked dancers and musicians leading a procession from the palace through the main bazaar. She came across monks burning effigies and making crosses of thread to trap harmful spirits and hungry ghosts of the old year. There was much hustle-bustle, but the evening when Abile returned home, she could only complain, "Oh dear, my head is spinning." There were so many people there that the breath was squeezed out of me. I will never go again. Finally, during those days, a daughter of a distant relative came to visit us in our village. She lived in Delhi. Abile did not recognize her and kept staring at her. We stifled our laughter and enjoyed ourselves thoroughly. Finally, when Abile was told that this was Dolma, she was astonished. La Dolma. I was wondering from where this Mem Sahib had descended upon our house. What kind of clothes have you put on? Dolma smiled. Where have you come from, Dolma? I live in Delhi, Amma. Oh, then you must meeting Rukhsana every day. Amma, Delhi is very far from Srinagar. Have you never met Rukhsana? Abile sighed in disappointment. I spent 2 days in Srinagar. On my way here, I tried to meet Rukhsana but couldn't locate her house, Amma. Oh, what have you done? Abile was miffed. You were in Srinagar and couldn't find house of my granddaughter? It's a big city, my sister-in-law interrupted. It has a population of 5 to 6 lakhs. Abile, how will people know where someone lives? They have the complete, and unless they have the complete address. Everyone says the same thing. Abile's tone, yeah. Everyone says the same thing. Abile's tone becomes serious and her eyes filled with tears. I remember another funny episode regarding my Abi. I was very young those days. My uncle sometimes came to village to hunt. Once my uncle returned to the town but left his double-barreled gun behind. Agu had kept his gun in the kitchen where a big battalion of children of various relatives and in-laws often gathered. Abile was so tense that she couldn't sleep for nights. She guarded the kitchen all day to make sure no child touched the gun, convinced that as soon as it was touched, the bullets would explode instantly and everyone would die. She would have locked the door if it had been another room, but how could she close off the kitchen? When Abba and Agu returned to the village on the third day and heard about the situation, they rolled on the floor with laughter. So now कंटिन्यू करते हैं कल की स्टोरी को, जहां पे हमने खत्म किया था कि प्रीवियस लेक्चर में कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी. नाउ श्रीनगर तो दूर की बात है. अभी ने हमारे दूर के अभी हैज नॉट वेंचर्ड बियॉन्ड अ डिस्टेंस ऑफ 10 माइल्स फ्रॉम आवर विलेज. अभी ने हमारे गांव से 10 मिनट की मसाफत भी दूर तय नहीं की है पिछले 2 साल से. और आफ्टर अ गैप ऑफ 8 years शी मेड इट टू लेह टाउन. 8 साल के अरसे के बाद वो लेह टाउन गई, लेह कस्बा गई. किस चीज के लिए? एनुअल डसमोचे फेस्टिवल के लिए. हेल्ड एवरी विंटर. तो वो क्या होता है कि हर सर्दियों में ये मेला होता है लेह में, डसमोचे का फेस्टिवल, जहां पे कस्बे से जो भी बुरी आत्माएं हैं, बुरी ताकतें हैं, बुरी शक्तियों को निकालने के लिए. उन्होंने क्या देखा? वहां पे डांसर्स को देखा, रक्स करते म्यूजिशियंस को देखा, जो पूरी बाजारों में और पैलेस के इर्द गिर्द घूम रहे थे.
पैलेस से निकले और पूरी बाजार में घूम रहे थे। और उन्होंने कहाँ पे देखा, जो साधु संत हैं, साधु है, मंक्स है, लामाज हैं, वो जला रहे थे कुछ एफिगीज, कुछ जैसे कि रावण का पुतला जलाया जाता है उसी तरह से, इन मेकिंग क्रॉसेस ऑफ थ्रेड टू ट्रैप। और वो क्या करते थे, जो धागे हैं उनके क्रॉसेस करके वो क्या करने की कोशिश करते थे, जो नुकसानदेह जो आत्माएं हैं, स्पिरिट्स हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो पिछले साल में इस कस्बे में रही होगी। तो ये ऐसी एक रिवायतें हैं। देयर वाज सच, बहुत ही एक वहां पे शोर शराबा रहा। एंड बट दैट इवनिंग व्हेन अबिले रिटर्न होम शी कुड ओनली कंप्लेन। मगर जब वो घर वापस आई तो सिर्फ शिकायतें थी अबिले के पास। क्या शिकायत थी कि मेरा सर चकरा रहा है, और वहां पे बहुत सारे लोग थे, इतने सारे लोग थे कि सांस लेना भी मुश्किल था, और अब मैं तहिया करती हूं कि मैं कभी भी वहां पे नहीं जाऊंगी। तो हुआ क्या है कि उसी औकात के दौरान हमारे एक दूर के रिश्तेदार की एक लड़की हमारे घर आती है, जिसका नाम डोलमा है। और अबीले ने उसे पहचाना नहीं और उसे देखते रही। और जब फाइनली अबीले के सामने डोलमा आई तो वो परेशान हो गई। ला डोलमा, ये तुम हो? मैं तो परेशान हो गई, पता नहीं कौन सी अंग्रेज मेम साहब हमारे घर में आ गई है, और तुमने किस किस्म के कपड़े पहने हुए? तो जाहिर सी बात है डोलमा ने कुछ वेस्टर्न टाइप के कपड़े पहने हुए थे। तो डोलमा मुस्कुराई और कहने लगी कि और फिर डोलमा से कहने लगी कि अबीले तुम कहाँ थे इतने दिनों? तो वो कहती है कि मैं दिल्ली में रहती हूँ हमारे। अच्छा, तो तुम दिल्ली में रहती हो, तो फिर तो तुम रुखसाना से हर रोज मिलती होगी। तो वो कहने लगी कि अमाले श्रीनगर से दिल्ली काफी दूर है। तो हैव यू मेट नेवर रुखसाना? तो अबीले इस चीज पे काफी मायूस होगी। तुमने क्या कभी मेरे रुखसाना से मुलाकात नहीं हुई तुम्हारी? तो वो कह रही है कि मैं 2 दिन श्रीनगर में रही, मगर मेरी रुखसाना से कोई मुलाकात नहीं हुई, तो मैं उसे नहीं ढूंढ पाई। तो ये सुन के अबीले को बहुत गुस्सा आ गई। तुम श्रीनगर में रही और तुम मेरी रुखसाना को नहीं ढूंढ पाई, तुम मुझसे मिली नहीं, तुम कैसी हो? तो मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी, जो मेरी भाभी थी, वो उन्होंने अबीले को रोका। उन्होंने कहा कि श्रीनगर अबीले 5-6 लाख पॉपुलेशन आबादी, एक बहुत बड़ा शहर है, और कौन एग्जैक्ट लोकेशन एड्रेस के बगैर कौन किसे ढूंढ सकता है? तो एवरीवन सेज द सेम थिंग। तो अबीले इस चीज को देख के बहुत मायूस हो गई। हर किसी के पास कोई ना कोई बहाना होता है तुम लोगों के पास कुछ ना कुछ कहने का। और अबीले बहुत ही मायूस हो गई और अबीले के आंखों में आंसू आ गए। सो अभी तक आपको एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हाउ अब्दुल गनी शेख हैज ट्राइड टू स्केच द कैरेक्टर्स कैसे कैरेक्टर्स, लद्दाखी कैरेक्टर्स पर्टिकुलरली। नाउ व्हेन द स्टोरी इज अबाउट, उन्होंने एक लद्दाखी, एक बुजुर्ग खातून की जो मेंटालिटी है, उसकी जो मासूमियत है, और उस उम्र का जो तकाजा है, उसको कितनी खूबसूरती के तरह से बयान किया है डिफरेंट सिचुएशंस का। एंड दैट इज द मास्टरी ऑफ हिज स्टोरी टेलिंग। आई रिमेम्बर, अब एक चैप्टर आगे बढ़ जाता है और शेख साहब कहते हैं कि मैं आगे बढ़ गया और मुझे और एक फनी एपिसोड याद आता है अपने बचपन का, कि जहां पर अभी आई वॉज वेरी यंग दोस्त, मैं बहुत जवान था उन दिनों, और मेरे अंकल केम टू विलेज टू। मेरे अंकल हमारे गांव आए थे शिकार के लिए। तो जब अंकल आए तो उनके हाथों में एक डबल बैरल्ड गन थी। आगू हैड केप्ट हिज गन इन द किचन वेयर, तो ये मेरे जो अजंगले है आगू, उन्होंने क्या किया था कि जो एक गन है वो किचन में रखा था, और जहां पे अक्सर जो हमारे खानदान के जो बच्चे हैं वो आते रहते थे। तो अबीले गन को देख के बड़ी ही दहशत ज़दा हो गई, और उन्होंने क्या काम किया, अबीले को 2 रात तक नींद नहीं आई। शी गार्डेड द किचन ऑल डे। तो दिन भर वो किचन की ये करती थी, रखवाली करती थी कि कोई बच्चा वहां पे नहीं आए या फट ना जाए ये, एंड ताकि कोई बच्चा, कन्विंस दैट एज सून एज इट वाज टच द बुलेट्स विल एक्सप्लोड। तो उनका ये मानना था कि जैसे ही इस गन को कोई टच करेगा हल्का से, तो उसमें से गोली निकलेगी। तो ये मासूमियत का ये हद था, और हर इस घर में जो भी लोग हैं वो मर जाएंगे। शी वुड हैव लॉक्ड द डोर, और उन्होंने किचन का दरवाजा पूरे दिन बंद रखा।
if it had been another room. अगर कोई कमरा होता तो उसको हम लॉक भी करके रख सकते हैं, मगर किचन जो नॉर्मली यूज होता रहता है, जहाँ पे फैमिली का हर कोई मेंबर आते रहता है, उसको कैसे बंद किया जाए। तो वो वहां दिन भर रही और रखवाली करती रही, और जब आबाले, मेरे फादर और मेरे आजंगले को इस चीज के बारे में मालूम चला, वो तीसरे दिन जब वापस आए तो वो लोट पोट होके हंसने लगे। तो हम एक पैसेज इससे पढ़ेंगे। मैं ये यहाँ पे कन्फेशन करना चाहता हूं कि हम कभी कभार हमारे अबीले की सादगी का बहुत फायदा उठाते हैं। तो क्या हुआ कि द आर्मी ऑफ चिल्ड्रन ऑलवेज प्रेजेंट एट आवर होम ऑफन टीयर्स माई नोटबुक्स। तो जो मेरे बच्चे हैं जो हमारे घर में, वो हमेशा मेरी किताबों और मेरे जो नोट्स हैं उसको फाड़ते हैं, और उसको कभी कोई पतंग, कभी कोई किश्ती बना के तार तार करते हैं। और मैं हमेशा अपने जो मासूम, अपना जो एजिटेटेड जो चेहरा है वो अबीले की तरफ देख के देखता हूँ, और इन ऑफिशियल जो दस्तावेज हैं इनकी तरफ देखता हूँ, और कहता हूँ अबीले की मुझे इस चीज का काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। दिस वर्ड्स वुड लाइक मैजिक ऑन हर। तो जब ये मैं ऐसे इस तरह से बातें करता था अबीले के सामने, तो ये जादू का एक काम करती थी अबीले पे। तो अबीले क्या करती थी, तो अबीले मेरे इन कागजात को संभालती थी विद सच इंटेंस केयर दैट नो चाइल्ड वुड डेयर टू इवन लुक एट देम, कि कोई भी बच्चा इन कागजात की तरफ देखने की हमाकत भी ना करे। नॉट स्टॉपिंग एट दैट, शी सेव्स ऑल सॉर्ट ऑफ स्क्रैप्स एंड टिडबिट्स इवन व्हेन आई एम अवे। ये छोड़िए, ऑफिशियल कागजात तो छोड़िए, जो कूड़ा करकट होता है इन कागजात के साथ साथ जो है वो भी अबीले इनको बचा के रखती थी जब मैं गांव से दूर होता था। शी प्रेजेंट्स देम टू मी, और जब मैं वापस आता था घर तो ये इन कागजात के साथ जो इन कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े होते थे वो भी वो मुझे पेश करती थी। Among them are papers from the grocer and snuff sweller for wrapping spices and snuff। और इन कागजात में, कागजों के बगैर जो हम दुकानों से जो चीजें खरीद के लाते हैं, उनकी जो कागज की जो थैलियां रह जाती है, उन चीजों को भी एक तोहफे के तौर पे वो बचा के हमारे सामने रखती थी। सो दिस रिफ्लेक्ट्स दिस रिफ्लेक्ट्स दैट कि कितनी सादगी थी, कितनी एक मासूमियत थी उस जमाने की। और अभी भी हमारे जो खवातीन है, जो बुजुर्ग खवातीन है, हमारे जो ओल्ड एज सिटीजन हैं, उनमें काफी एक मासूमियत दिखने को मिलती है। और किस तरह से एक कॉन्ट्रडिक्शन एक पैदा किया है अब्दुल गनी शेख साहब ने अपने कहानियों के जरिए, इस कहानी के जरिए, एक अबीले के कैरेक्टर के जरिए कि एक लद्दाखी एक फैमिली की एक कहानी बताने की कोशिश की है, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन एन ओल्ड एज वेमेन, दैट इज अबीले। और इस कहानी का आखिरी हिस्सा हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और उम्मीद है कि आपको ये कहानी अभी तक पसंद आई होगी। एंड मेरी दरख्वास्त है कि आप जो बुक स्टोर्स हैं हमारे यहाँ करगिल में या लेह में, वहाँ जब हालात जब ठीक हो, वहाँ जाके शेख साहब की किताबों को छांटने की कोशिश करें, उन्हें देखें, उन्हें पढ़ें, और आपको इस तरह से अपने लद्दाखी समाज की अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी मदद मिलेगी। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।